ہونا مجھے نا کسی کو پیار ہو گیا. اور یاد رکھنا شوہر صرف شوہر نہیں ہوتا بلکہ مجازی خدا ہوتا ہے. ارے کیا بات ہے بھائی، اتنے سارے کپڑے ہاتھوں پہ اٹھا کیوں گھوم رہی ہیں؟ میرو آپا کے پاس لے کے گئی. میں ہر موقع پر اپنا جوڑا انہی سے سلیکٹ کرواتی ہوں، لیکن ابھی انہوں نے اپنا دروازہ اندر سے لاک کیا. مجھے لگتا ہے وہ کچھ چلا کاٹتے ہیں. آپ ایسا کام کرے کہ جوڑا مجھ سے سلیکٹ کروائے. میری چوائس بہت اچھی ہے. ویسے یہ تو بتائیں کہ ایونٹ کیا ہے، کہیں جا رہی ہے؟ کہیں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں البتہ کوئی آ رہا ہے. آ رہا ہے؟ کون؟ لو بھائی، یہ تو کمال ہے. ملنے والا جس سے ملنے آ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے. چچا نور الدین اور چچی صالحہ تم سے ملنے کے لیے آ رہے. تم اتنے سالوں بعد جو وطن واپس لوٹے ہو. لیکن چچا نور الدین تو ہمیں اسی دن ملنے آئے تھے جس دن ہم واپس آئے تھے. جی، لیکن اب وہ اپنی پوری فیملی سمیت آ رہے ہیں. وہ اپنی پوری فیملی سمیت کب آ رہے ہیں؟ سلام بھائی صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بھابھی؟ بالکل ٹھیک. آئیے نا. ارے وعلیکم السلام. جیتی رہو. بھابھی ماشاء اللہ کتنی پیاری ہوگی ہماری بیٹی. آئیے بیٹھی. شکریہ. بھابھی آپ نے بہت اچھا کیا آ کر. اور سناؤ حیدر بیٹا، کیسی رہی تمہاری پڑھائی؟ بھی کون سی ڈگری لے کے آئے ہو باہر سے؟ چچا جان میں نے ایگریکلچر میں ماسٹر ڈگری لی ہے. اوہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں بھائی صاحب کی زمینیں دگنی چگنی پیداوار دینے والی ہیں. انشاءاللہ چچا جان ایسا ہی ہوگا. چچا جان گوروں سے ایگریکلچر میں ڈگری لے لینا اور بات ہے، اور پریکٹیکلی یہاں کے مزارے سے سر کھپائی کرنا دوسری بات ہے. یہاں ایکسپیرینس کام آتا ہے. یونیورسٹی کی لیب میں کیے ہوئے ایکسپیریمنٹس یہاں نہیں چلتے. بھئی کہا تو تم نے بھی ٹھیک ہے. بھائی صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ بابا جان آستانے پر ہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. بھائی سبحان اللہ، بھائی صاحب تو غریبوں کے مسیحا ہیں. وہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن آستانے میں خلق خدا کی خدمت نہیں چھوڑ سکتے. آپ دونوں تو پہلے مل چکے ہو نا بھئی، بچپن میں جب ہم سب اس حویلی میں اکٹھے تھے. بابا جان میں بھلا رجب بھائی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ انہوں نے تو مجھے نہر میں تیرنا سکھایا. تیرنے سکھایا تھا؟ میں نے تمہیں اٹھا کے نہر میں پھینک دیا تھا کیونکہ تم بہت ڈر رہے تھے. اور رجب بھائی اگر آپ مزید 5 منٹ مجھے ریسکیو کرنے کے لیے نہ آتے میں تو گیا تھا. او یار ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رجب بھائی آپ نے مجھے اور حیدر کو زبردستی رائڈنگ سکھائی ہے. ہاں تمہارے بارے میں مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں. حیدر کی طرح تم بھی بہت اچھے رائڈر ہو. جی جی بالکل. وہ تو ہارس اینڈ کیٹل شو میں کافی انعامات جیت چکا ہے. ویری گڈ. رحیم بھائی پھر آج تک آپ سوئمنگ تو نہیں بھولے ہوں گے؟ نہیں سوئمنگ کہاں بھولتی ہے، لیکن اب نہروں میں بہت گند ہوتا ہے تو اپنے فارم ہاؤس کے سوئمنگ پول میں کبھی تیراکی کر لے. یہی ٹھیک رہتا ہے. بابا جان آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مانتا ہے وعلیکم السلام. بیٹھو 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 بھائی بیٹھو. آپ اور سنا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب، بیٹے کے وطن واپس لوٹنے کی اور اس کی فرسٹ کلاس کی ڈگری کی بھی. ہاں ہمیں بہت فخر ہے حیدر پر. جس امید پر ہم نے اسے اپنے سے دور رکھا اس پر یہ پورا اترا ہے. اللہ کا شکر ہے آج دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں. میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے.
हमारी बेटी कैसी है भाई? जी भाई साहब, माशाल्लाह यास्मीन बेटी ने भी बीए की डिग्री हासिल कर ली। माशाल्लाह। और बेटा तुम लोग क्या करो, क्या हो रहा है आजकल? जी तायाजान, करीम शाह तो शुगर मिल लगाने का प्लान कर रहा है। और तायाजान रहीम भाई जमीनों के मामला देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, आज मुनासिब मौका है, सब यहाँ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कुछ मामला तय कर लिए जाए। हाँ कहो, बोलो। यास्मीन बेटी और रजब बेटी की शादी की तारीख तय कर ली जाए। सुभान अल्लाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आज यही सोचकर आया था कि तुमसे बात कर ही ली जाए। तो फिर आप ही कोई अच्छी सी तारीख दे दीजिए। देखो, अगला महीना मुहर्रम का है, सफर में तैयारियां शुरू कर लेते हैं और रबीउल अव्वल की 10 तारीख और मेरे ख्याल से दिन भी जुमे का, उसको तय कर लेते हैं। अल्लाह ताला इस दिन को हम सब के लिए मुबारक करे। आमीन। हाँ भाई, जुमे का दिन वैसे भी अल्लाह के फजल से बहुत ही बाबरकत दिन होता है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत। भाभी जान, पहले तो हम आपसे माजरत चाहें कि हैदर बेटे को आए हुए 8 दिन गुजर गए और हम आज उससे मिलने के लिए आए। वो असल में आपके भाई साहब शहर गए हुए थे किसी जरूरी काम से, परसों ही लौटे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी। वो मेहरू बेटी दिखाई नहीं दे रही। वो अपने कमरे में है, शायद इबादत में मसरूफ होंगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमें तो यास्मीन के बारे में बताइए, कैसी है वो? आपको बहुत याद करती है। बस तो उसे हमारा पैगाम दे दीजिएगा कि हम उसे ज्यादा दिन आपके घर नहीं रहने देंगे, यहाँ ले आएंगे बस। ये बात तो सच है कि आए तो हम हैदर बेटे को मिलने ही, लेकिन सोचा कि लगे हाथों क्यों ना अपने रजब बेटे और यास्मीन बेटी की शादी की तारीख पक्की करते चले। वाकई इससे बड़ी खुशी की बात और भला क्या हो सकती है? लेकिन इस खुशी के मौके पर हम एक सवाल लेकर आए हैं आपके पास। क्या मतलब? भाभी जान, असल में हम लोग अपने बेटे रहीम शाह के लिए मेहरू बेटी का हाथ मांगने आए। भाभी, अब बात तो बहुत खुशी की है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। अब देखिए शाह जी क्या फैसला करते हैं। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, लेकिन अब आप वही करेंगी जो मैं कहूँगी। चलिए। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी बेटी को उस घर में ब्याह दें जहाँ से हम अपनी बहू ला रहे हैं? मेहरू आपा, मेहरू आपा, क्या बात है? खैरियत तो है ना? मैं आपके लिए खुशी की खबर लाई हूँ, जरा बूझे तो। खुशी की खबरें तो इस हवेली के मर्दाने तक आकर रुक जाती है। तुम ऐसी कौन सी खबर लाई हो? तो बस फिर समझ लीजिए कि आज काया पलट गई है और खुशी धूम मचाती हुई आपके कमरे तक पहुंच गई। अच्छा, अब कह भी दो, चाची सालिया ने अपने बेटे रहीम शाह के लिए आपका रिश्ता मांगा है। क्या? तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। नहीं आपा, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। ठीक है, फिर दोबारा जाओ और अच्छी तरह सुनो कि सालिया चाची जो मांगने आई है उन्हें मिलेगा भी कि नहीं। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं आपा? भला ऐसा कभी हुआ है कि इस हवेली में किसी ने सवाल डाला हो और वो कभी पूरा ना हुआ हो? और वैसे चाचा नूरुद्दीन खुद बाबा जान से इस बारे में बात करने वाले। से भी हम कोई नजर न्याज नहीं जो किसी की झोली में भी डाल दिए जाए। हम तो तकद्दुस की चादर में लिपटी हुई वो गुड़ियाएं हैं
जिन्हें खुद अपनी जात से भी कोई तकाजा करने की इजाजत नहीं। आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं आपा? तुम अपनी मासूमियत के असर में खुशी मना रही हो दीदी, जबकि मैं अपने गिर्द इन दीवारों की ऊंचाई को जानती हूँ। आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस आप मेरे साथ चलिए और जाकर खुद भी देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। चलिए। सीबी, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना। बस आपा, आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, लेकिन अब आप वही करेंगी जो मैं कहूँगी। चलिए चलिए मेरे साथ। आप चले तो सही ना आपा। एक मिनट, हमें जूता करवाना है। जल्दी करें ना। आप आइए। हम देखो नूरुद्दीन, तुम्हारी बेटी यास्मीन को हम रजब के लिए मांग चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी बेटी को उस घर में ब्याह दें जहां से हम अपनी बहू ला रहे हैं? क्या तुम अपने खानदान की रिवायत को भूल चुके हो? हरगिज नहीं भाई साहब, लेकिन मैं इस ख्याल से यह सवाल लेकर आया हूं कि मेरे दोनों बेटों के अलावा आपकी बेटियों के लिए कोई रिश्ता भी तो मौजूद नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा सैयदजादा है जिससे आप अपनी बेटियां ब्याह दें? यकीनन आपको नसब के साथ साथ मर्तबे का भी ख्याल रखना होगा। इस तरह के मेरे बेटे के अलावा तुम्हारी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता मौजूद है? अगर तुम रहीम शाह के लिए मेरी बेटी का रिश्ता चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें रजब के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये मंजूर है? नहीं भाई साहब, मुझसे अपनी बेटियों से ये जुल्म नहीं हो सकेगा। तो फिर सुन लो नूरुद्दीन, हम अपनी बेटियों को इस जुल्म की निस्बत जिंदगी गुजारने पर तो मजबूर रख सकते हैं, लेकिन अपने खानदान की पुरानी रिवायात के साथ बगावत नहीं कर सकते। बाबा जान, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम खामोश हो हैदर। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोला करते बेटे। लेकिन तुम्हें कहा ना हैदर, खामोश बैठे रहो, और अगर खामोश नहीं बैठ सकते हो तो चले जाओ यहां से। लानत है जिंदगी पर जहाँ इंसान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, कोई ख्वाब नहीं देख सकता, बाप बाप नहीं लगता और भाई भाई नहीं लगता, सबके सब मर्द है, सिर्फ मर्द। और हम बेटियां इनके लिए
भड़के मुझसे इतने जालिम है, हमारे आंसुओं को भी नहीं देख सकते ये जालिम। ना जाने कब तक अपनी फरसूदा रिवायात की कब्र की मजबूरी करते रहेंगे ये। ना जाने कब हमें मौत आएगी और हमारी इस जिल्लत की जिंदगी से जान छूट जाएगी, जान छूट जाएगी, जान। तुमने सब सुन भी लिया हैदर और देख भी लिया। ये है हमारी जिंदगी और ये है हमारी अहमियत रजब भाई और बाबा जान की नजर में। मुबारक हो नजरी बेगम, तुम्हारे बेटे की शादी की तारीख पक्की हो गई। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगले चांद की 10वीं तारीख तय पाई है। अब ये तुम पर है कि तुम शादी की तैयारियां कितनी जल्दी मुकम्मल करती हो। शादी वो मेहरू के बारे में इनकार कर दिया मैंने, तुमने सुना नहीं था? मुझे इसी मामले पर आपसे बात करनी है बाबा जान। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है हैदर। चाचा नूरुद्दीन बड़े हैं, उन्होंने बाबा से जो कहा है बाबा जान ने उन्हें उसका जवाब दे दिया है और वो काफी है। ना तो मुझे चाचा जान की किसी बात पर उनकी कोई हिमायत करनी है और ना ही बाबा जान के इनकार पर बहस। मुझे तो आपकी वो बात खटक रही है बाबा जान जो आपने ज़ेदी आपा और मेहरू आपा के बारे में की। आपकी उस बात से तो लगा जैसे आप उनकी शादी करना ही नहीं चाहते। यही समझो। क्या मतलब बाबा जान? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने कहा ना कि तुम्हारा मसला नहीं है। ये कोई मसला नहीं है रजब भाई, ये जिम्मेदारी है आप पर, मुझ पर और बाबा जान पर। ये हमारी बहनों का फितरी हक है। और आप बाबा जान उस दिन गांव वालों की बेटियों के अच्छे रिश्तों के इंतखाब के लिए तो आप क्या खूब इंसाफ से फैसला कर रहे थे, लेकिन अपनी बेटी। हैदर, मैंने कहा ना कि जिस बारे में तुम नहीं जानते हो उस पर बहस मत करो। क्या चाहते हो तुम? कहाँ करें उनकी शादियां हम? अगर आपको चचा जान के बेटों से उनकी शादियों पर कोई ऐतराज है तो कहीं और कहाँ? कौन ऐसा सैयदजादा जो हमारे बराबर का हो? किसके पास है इतनी जमीन और जायदाद? इट्स टू मच। आप जमीनों और जायदादों को बराबरी का मयार करार दे रहे हैं। उस दिन दरबार में तो बाबा जान आप इल्म की बराबरी को फौकियत दे रहे थे। आज क्या आप रजब भाई की इस बात से इत्तेफाक करेंगे? ये आप ही के कौलो खेल का तर्दाद नहीं होगा बाबा जान। और ये किस सहीफे में उतरा है कि उनकी शादियां खानदान से बाहर नहीं हो सकती।